We are just going to start with the B2H6 and Lewis base reaction. If we are supposed to take the small size bases like NH3, H minus, CH3, NH2, CH3 का whole twice NH, then there is an unequal breakage of B2H6 to BH2 plus and BH4 minus. It is called unsymmetrical cleavage. Just take an example of 2NaH plus B2H6 gives out 2NaBH4. Second case is if the Lewis base is of large size. Suppose CH3 whole size N. Pyridine means drawing the benzene, and at one place we are replacing carbon with nitrogen. Next is THF. Next is PF3 Me2O ET2O. In these cases there is a symmetrical cleavage of the B2H6 to 2NH3. So in symmetrical cases B2H6 breaks into 2 BH3 molecules. Suppose let's take an example. We are having a base CH3 whole thrice N reacting with B2H6 that gives out 2 CH3 का whole thrice N, forming an adduct with BH3. Next is B2H6 and NH3 reaction. If we are reacting B2H6 in NH3 excess at low temperature, room temperature, then we are forming BH2 plus coordinated by 2 molecules of NH2, and at the outside the coordinate, that is BH4 minus. If we are reacting B2H6 at the excess of NH3 at the high temperature, we are forming with Bn whole X, that is called boron nitride, inorganic graphite. Here the B and N are with the sp2 hybridization to reach sheet-like structure. If we are reacting B and whole X at the high temperature, suppose 3000 degrees Celsius, then we are forming with B and whole X. It is a 3D structure, network-like structure. B and N are sp3 hybridized. Inorganic diamond, also called borazone. Next is B2H6 and NH3 reaction in the ratio 1:2 at the high temperature. We are going to form with B3N3H6, that is borazine, borazo, or inorganic benzene. Next we are having the B2H6 and H2O reaction. When B2H6 react with the 6 moles of H2O, it gives out H3BO3 plus H2. First of all, we are going with BeH2 का whole twice, that is a dimer of BH2 in vapor phase. BeH2 is BeH2 is also, BH2 जो होता है वो also in gaseous phase होता है. ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं. देखो BE और यहाँ पे BE. ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बेरिलियम के बीच में 2 बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, और 2 हाइड्रोजन जो है बाहर होता है, जिसको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं. ठीक है, ये sp2 होता है, प्लेनर होता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं BeH2 का होल N. पॉलीमर ऑफ BeH2 इन BeH2 का पॉलीमर जो है वो सॉलिड स्टेट में बनता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेरिलियम बीच में होता है, हाइड्रोजन बेरिलियम मतलब इसमें जो होता है वो सारे ही क्या होता है, ये भी ब्रीजिंग है, ये भी बनाना बॉन्ड हाइड्रोजन है, ये भी बनाना बॉन्ड हाइड्रोजन है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है. ठीक है, सारे होते जो है इसमें बनाना बॉन्ड ही होते हैं. ठीक है, हाँ, तो ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, नॉन प्लेनर होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ऑल बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं. अदर एग्जांपल्स ऑफ बनाना बॉन्ड की बात करें तो अलेन AlH3 होल N, पॉलीमर ऑफ AlH3 होता है. AlH3 is the monomer that is planar, and Al2H6 dimer of AlH3 non-planar.
Al2H6 does not exist at room temperature, exists at low temperature. Coordination number is 6 and hybridization is sp3d2 non-planar. All AH bond identical. ठीक है, यहाँ पे देखो AL, यहाँ पे HAL, HAL, यहाँ पे AL, HAL. ठीक है, यहाँ पे सारे बॉन्ड जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. नेक्स्ट इज Al2CH3 का होल 6, दैट इज डाइमर ऑफ AlCH3 का होल थ्राइस. ठीक है, यहाँ पे AlCH3 AlCH3 Al. ठीक है, यहाँ पे sp3 ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे Ga2CH3 का होल 6 भी हो सकता है, जो कि डाइमर होता है GaCH3 का होल ट्वाइस का. Al2PH होल 6 डाइमर ऑफ AlPH3 होल 3. ठीक है, next we are going to deal with the coordinate bond. First of all, first compound is Al2Cl6 dimer of AlCl3 in vapor phase होता है या फिर solid phase होता है. ठीक है, इसमें क्या करता है कि क्लोरीन अपना जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एल्यूमिनियम को देता है. यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का क्लोरीन ये नॉर्मल बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, ये वाला क्लोरीन जो होता है इसको एल्यूमिनियम को डोनेट करता है. ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाला एल्यूमिनियम के लिए नॉर्मल and this chlorine is donating its electron to the Al. ठीक है, sp3 hybridized non-planar octet completed. Other example Fe2Cl6 Al2Br6. Next we are having BeCl2 whole twice dimer of BeCl2 in vapor phase. BeCl normal Cl donating its electron, normal donating its electron. sp2 hybridized planar molecule incomplete octet. 3 carbon 3 center 4 electron bond. Next we are having BeCl2 whole N, that is polymer of BeCl2 in solid phase. यहाँ पे जो BE है नॉर्मल और ये कोऑर्डिनेट करता है इसको. ऐसे इस बेरिलियम के लिए नॉर्मल और ये वाला कोऑर्डिनेट कर रहा है. ठीक है, और इधर से एक क्लोरीन ये यहाँ भी डोनेट कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही इस BE के लिए यहाँ से Cl यहाँ से डोनेट करेगा. ठीक है, और यहाँ से भी डोनेट करेगा. इसलिए जो होता है sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है इसका. नॉन प्लेनर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज I2Cl6 डाइमर ऑफ ICl3 होता है. डाइमर ऑफ ICl3 इन वेपर फेज होता है. ठीक है, यहाँ पे I लेते हैं Cl नॉर्मल बॉन्ड होता है. क्लोरीन जो होता है इसको डोनेट कर देता है. ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन जो होता है इसे डोनेट कर देता है. ये 1 2 3 नॉर्मल बॉन्ड बनते हैं. sp3d2 बनता है हमारा स्ट्रक्चर. प्लेनर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप ऑफ बोरेन की बात करें तो सबसे पहले होता है हमारे पास क्लोजो बोरेन इज BnHn+2. नेक्स्ट इज नीडो बोरेन BnHn+4. आर्केनो बोरेन BnHn+6. ठीक है, फिर तो फॉलोइंग जो होता है वो फॉर्म करेगा डाइमर. इनमें से कौन सा जो है वो डाइमर फॉर्म करेगा. सबसे पहले BF3 BCl3 BBr3 BI3. इनमें से कोई भी जो है बोरोन के तीनों से कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे. ठीक है, बोरोन का कोई भी हैलाइड के साथ कंपाउंड BF3 BCl3 BBr3 BI3 इनमें से कोई भी जो है हमारा डाइमर फॉर्म नहीं करेगा. अगर AlCl3 की बात करें AlCl3 फॉर्म करेगा, BeCl2 फॉर्म करेगा, AlBr3 फॉर्म करेगा, AlI3 फॉर्म करेगा. ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन B2H6 जो होता है वो ऑब्टेन्ड हो सकता है. ठीक है, तो जो है अगर मेटल हाइड्राइड हो या फिर H2 हो और प्लस में बोरोन हैलाइड हो या फिर जो है X2 हो तो वो क्या फॉर्म कर लेगा B2H6 फॉर्म कर लेगा. ठीक है,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो Mg3B2 वो रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ, फॉर्म करेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस में B2H6 फॉर्म करेगा। अगर ऐसे हम Mg3 जो है Mg3B2 को 10% HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा MgCl2 प्लस में मिक्सचर ऑफ बोरेन। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। बैक बॉन्डिंग, रिंग स्ट्रेन, स्टेरिक रिपल्शन रिस्ट्रिक्ट करता है ब्रिज बॉन्डिंग को। ठीक है, जैसे यहाँ से पूछा गया है NaBH4 प्लस I2, क्या हमारा B2H6 देगा? हाँ देगा। NaBH4 प्लस BI3 देगा। LiH प्लस में BF3 देगा। यहाँ पे H2 प्लस BCl3 देगा। ठीक है, नेक्स्ट है MOT। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, कंपैरिजन ऑफ MOT एंड VBT। ठीक है, यहाँ पे VBT के अकॉर्डिंग एक और वो एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलेगी तो एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक और एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगी, एक ABMO एक BMO। ABMO जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, BMO जिसकी एनर्जी कम होती है। VBT जो होता है बेस्ड होता है ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वाइल MOT इज बेस्ड अपॉन द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये अकर करता है सेम फेज में। ठीक है, यहाँ पे जो फाई है यानी कि ये फाई वाला हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट फाई स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है फाई ए प्लस फाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि फाई ए का स्क्वायर प्लस फाई बी का स्क्वायर प्लस 2 फाई ए फाई बी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, एनर्जी जो होता है वो रिलीज़ होती है और BMO फॉर्म्ड होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो अकर करता है इन अपोजिट फेस में अकर करता है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो YA माइनस YB का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2 फाई ए फाई बी बनता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, रिपल्शन इंक्रीज़ करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ABMO फॉर्म्ड होता है। ठीक है, नोट नंबर 1, BMO जो होता है वो फेवर करता है बॉन्डिंग को, जबकि ABMO जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है बॉन्डिंग को। सेकेंड पॉइंट है फिलिंग ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑल्सो फॉलो द अबव प्रिंसिपल, हुंस रूल और पोलिस प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू VBT ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है इन द ओवरलैपिंग, वाइल अकॉर्डिंग टू द MOT ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड हाँ, तो हम लोग ये वाला पॉइंट जो है रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू VBT ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, वाइल अकॉर्डिंग टू द MOT ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है और सेम ओरिएंटेशन होता है अंडरगो मिक्सिंग। ठीक है, जैसे कि 1s और 1s कम्बिनेशन से कंस्ट्रक्टिव होगा तो पाई 1s बनेगा यानी BMO। नोडल प्लेन जो होता है वो 0 होता है इसलिए जीरेट बोलते हैं। ठीक है, और अगर जो है एक जो होगा इसमें क्या बनेगा, ABMO बनेगा, जिसको जो है सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। NP इक्वल टू 1 होगा, अनजीरेट होगा। नेक्स्ट वी आर एविंग विद द 2s combination. 2s forms two molecular orbit, that is sigma star A to sigma star 2s means ABMO and sigma 2s यानी BMO। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग 2pz axial overlapping, 2pz constructive interference forms जीरेट, 2pz BMO, NP इक्वल टू नोडल प्लेन इक्वल टू 0। तो जब 2pz का जो है एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, तो अभी ये फॉर्म करेगा पाई
सॉरी सिग्मा 2pz फॉर्म करेगा, यानी BMO फॉर्म करेगा। नोडल प्लेन इक्वल टू 0 Z8 होगा। अगर नोडल प्लेन जो है वो 0 और इवन है तो Z8 और ओड है तो अनजीरेट। नोडल प्लेन इज जहाँ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है वहाँ उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट 2pz डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, देन सिग्मा स्टार 2pz इज फॉर्म, NP इक्वल टू 1, यानी कि अनजीरेट। ठीक है, ये वाला जो होता है, ये जो होता है एटॉमिक नोडल प्लेन होता है, नॉट इंक्लूडेड एटॉमिक नोडल प्लेन होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल नोडल प्लेन। टोटल नोडल प्लेन में इंक्लूडेड नहीं होते, एटॉमिक नोडल प्लेन होते हैं। ये वाला जो है हमारा मेन नोडल प्लेन है। ठीक है, नोट NBMO जो होता है, when mixing occur in the same phase but and opposite phase simultaneously and no bond formed by NBMO। इस बॉन्ड को दोबारा बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2p2p कोलैटरल कॉम्बिनेशन। 2p2p forms two molecular orbitals, that is pi star 2py, that is ABMO, and pi 2py BMO। ठीक है, नोट की बात करें NBMO when mixing occurs in the same phase and opposite phase simultaneously। तो जो होता है हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हाँ, तो जब NBMO जो फॉर्म होता है जब when mixing occurs in same phase and opposite phase simultaneously, इसमें कोई भी फॉर्म जो होता है फॉर्मेशन नहीं होता बाय NBMO, नो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय NBMO। ठीक है, केस नंबर 1, अगर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 15 है, देन अरेंजमेंट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। If the number of proton is less than or equal to 15, then sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px equal to pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px equal to pi star 2py, sigma star 2pz। Bond order means Nb minus Na by 2, number of electron in BMO, Nb is number of electron in BMO, Na is equal to number of electron in ABMO। ठीक है, इट इज़ अ टोटल नंबर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, कैन में पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है और इवन इन फ्रैक्शन भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स हैविंग ज़ीरो और नेगेटिव जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे जिसमें ज़ीरो या नेगेटिव होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, बट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन इन ABMO इज़ लेस स्टेबल। जिस मॉलिक्यूल में ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम bond order and same magnetic nature, but their bond length and bond energy may differ as they depend on the other factors also, like delta E and percentage S character. Bond order is directly proportional to bond stability, bond strength directly proportional to stability. Bond order is directly proportional to bond strength directly proportional to stability.